So, hi everyone, welcome back to Pubi Nursing Classes. Dear friends, I hope you all are doing very well. Thank you for all your support. Keep watching and subscribe and share the channel Pubi Nursing Classes. So, in today's class, we are going to discuss about the tuberculosis, or we can say TB, or a contagious bacterial infection. Right? I guess TB सभी ने सुना होगा, TB which is the tuberculosis, and बहुत common है ये. बट इसका जो बैक्टीरिया है दैट इज़ वेरी कंटेजियस, ईजिली जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्यूटिफुल टॉपिक द ट्यूबरक्लोसिस. लेट्स डिस्कस firstly the definition of the tuberculosis. So TB is the contagious bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. It primarily attacks the lungs but can spread to any part of the body. ठीक है, सभी ने सुना होगा दैट जो ट्यूबरक्लोसिस है ये लंग्स को अफेक्ट करता है, बट सभी को ये जानना ज़रूरी है कि ये किसी भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है. ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच इज द कॉजेटिव ऑर्गन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. सो एज वी नो दैट जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है यही कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस. सो ये इसका स्ट्रक्चर है एंड दिस इज, तो हमने प्रीवियसली भी ये देख लिया. Then, what is the incubation period of tuberculosis? So, dear friends, अगर बात करें incubation period की, the incubation period of tuberculosis from initial infection to the development of positive skin or blood test generally, it takes 2 to 12 week. तो आप देख सकते हैं 2 weeks से 12 weeks. It means 3 months. उसके बाद जो है उसका जो incubation, ये सारा इसका incubation period है 3 months का. However, the time it takes to develop actual active contagious TB disease is highly variable, with the highest risk being within the first 2 years of exposure. Right? कुछ पेशेंट में लेटली जो है इसका साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं. Because TB is a slow growing bacteria, it has a unique and complex timeline compared to other diseases. Right? Then type of tuberculosis, very important. Tuberculosis is of mainly 2 types. One is pulmonary tuberculosis and the second one is extrapulmonary tuberculosis. Now जो pulmonary tuberculosis है, it is the most common form of TB and affects the lungs and airways. ठीक है, pulmonary word जहाँ भी देखने को मिलता है that it is related to lungs. So जब भी बैक्टीरिया जो है ओनली लंग्स को अफेक्ट करता है उसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं. वेयर एज इफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ऑल्सो अफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ आउटसाइड ऑफ द लंग्स, बाकी पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है, उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं. और इसके सिम्टम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी. जिस भी बॉडी पार्ट में टीबी रहेगा उसके अलग अलग सिम्टम जो हैं वो देखने को मिलते हैं. लेकिन यूजुअली हम जो ट्यूबरक्लोसिस है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं. राइट, लेटेंट. ओके, सो समटाइम शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये पता होगा एंड कुछ को नहीं पता होगा. वन इज़ लेटेंट एंड वन इज़ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस. ये फॉर्म्स हैं ट्यूबरक्लोसिस की, ये टाइप्स नहीं है, ये फॉर्म्स हैं. इन द लेटेंट टीबी अब हमने डिफरेंस देखना है दैट इनमें डिफरेंस क्या है. सो इन लेटेंट टीबी द बैक्टीरिया आर इन बॉडी what are contained by immune system. People with latent TB are completely asymptomatic, do not feel sick and cannot spread the bacteria. अगर पेशेंट को latent TB है वो fully asymptomatic होगा और बीमार भी फील नहीं करेगा and cannot spread the bacteria. Whereas in active TB, immune system cannot contain in the bacteria. This disease become active, symptoms appear and the person can spread infection. ठीक है, एक्टिव टीबी में जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं एंड पर्सन कैन स्प्रेड इन्फेक्शन completely. So this is the difference between latent and active tuberculosis. MCQ एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है. The next is
clinical manifestation or the sign and symptom of tuberculosis. So active TB presents with, everyone knows, यहाँ पे एक इमेज भी देखने को मिल रही है आपको, whereas prolonged कफ रहती है, चेस्ट पेन, हीमोपेटाइसिस, फटीग, अनइंटेंडेड वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, ये मेजरली सिम्टम्स हैं वो जो देखने को मिलते हैं. क्लियर? बाकी जो इमेज है इसमें प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी है देखने को, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, हीमोपेटाइसिस, प्रोग्रेसिव फटीग, मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, सभी सिम्टम हैं. बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस और द लैब इन्वेस्टिगेशंस जो ट्यूबरक्लोसिस को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है. सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहेगा कि व्हेन पीपल कम विद द कंप्लेंट्स जो हमने अभी पढ़ी, सबसे पहले उनका किया जाएगा मेडिकल हिस्ट्री, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन स्पेसिफिक टेस्ट लाइक चेस्ट एक्सरे, sputum examination, sputum smear, molecular assay and tuberculin test for screening of the TB. Right? ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, लाइक स्पूटम कैसे करना है, मॉलिक्यूलर कैसे करना है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट कैसे करना है, लिटरली इन पे एक एक क्लास आपको चैनल में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. सो डियर फ्रेंड्स, जब मैनेजमेंट की बात आती है, इट मीन्स जो डिजीज़ कंडीशन है उसे पूरी तरह से पेशेंट की बॉडी से इरेडिकेट करना है. एंड जब ऐसी डिजीज़ कंडीशन देखने को मिले लाइक ट्यूबरक्लोसिस, सो इट्स मैनेजमेंट इज़ टोटली सेंटर्ड ऑन इरेडिकेटिंग मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी. पूरी तरह से बॉडी से इरेडिकेट होना चाहिए, बिकॉज अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, इफ़ द पेशेंट कैरियर रहता है इन्फेक्शन का, तो वो ईज़िली जो है सभी लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता है इन्फेक्शन. सो इनएक्टिव टीबी डिजीज़ ट्रीटमेंट, अभी हमारी लास्टली कुछ क्लासेस हुई हैं डॉट्स थेरेपी पे. सो ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट है डॉट्स थेरेपी, टिपिकली लास्ट फॉर 4 to 6 months. It generally involves the combination of 4 first-line antibiotics, that is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol. Whereas in latent TB, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, to stop inactive bacteria from progressing to active contagious disease treatment is highly recommended. जिसमें isoniazid जो है उसे डेली फॉर 9 months दी जाती है, rifampicin डेली फॉर 4 months. ठीक है, क्योंकि इसमें लेटेंट में तो वैसे ही पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होंगे और वो सिक भी फील नहीं करेगा, बट उसका जो इन्फेक्शन है वो मल्टीप्लाई ना हो, सो उसके लिए उसे ये मेडिसिन जो है वो रेकमेंड की जाती हैं. राइट? सो दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. नाउ लेट्स कम टू द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, which is the nursing management. So when we are working as nursing officers, we focuses on firstly the prevention of infection from to ourselves as well as other patients. अगर हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है, सो उसका जो इन्फेक्शंस है वो अदर पेशेंट को नहीं होना चाहिए. सो वी फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन. कोई भी डिजीज़ है उसका जो ट्रांसमिशन है वो नहीं होना चाहिए अदर पेशेंट के लिए. इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट मेडिकेशन एडहेरेंस, ऑप्टिमाइजिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस. ठीक है, जब हम नर्सिंग केयर प्लान डिस्कस करते हैं, सो इन दैट वी स्टडी दैट पूरा प्रोसेस जो है हम फॉलो करते हैं. असेसमेंट, गोल, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, प्लानिंग एंड बहुत सारे स्टेप्स उसमें रहते हैं. सो मेजरली वी फोकस ऑन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन, स्ट्रिक्ट मेडिकेशन पेशेंट को होनी चाहिए एंड उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑप्टिमाइज रहना चाहिए एंड उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए. बिकॉज इन द ट्यूबरक्लोसिस वैसे ही जो वेट है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है. राइट? सो
all dear friends, thank you for watching. Don't forget to subscribe, share and like the channel. Thank you being and stay connected. Meet you in the next video.